So this was the situation of Indian agriculture before independence. Now let's see what the Indian government did post independence to improve the status of the agriculture in India. So post independence, as we can see, there were various goals that Indian government adopted, and for to achieve those goals various steps or actions were taken. So let's see what were the goal that Indian government kept for itself to improve the state of agriculture in India. So the goals were ensure food security. हमारे पास वी ऑलरेडी नो बहुत सारी फेमाइंस और ये इसमें जिसमें लोग मरते रहे हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम. सो फूड सिक्योरिटी, ऑल्सो द पॉपुलेशन वॉज राइजिंग रैपिडली post independence. So food security was a major goal for Indian government. So ensuring food security was one of the goals. And then second, improve agricultural condition, क्योंकि एग्रीकल्चर की हालत तो बहुत ही ख़राब थी. ब्रिटिश ने कुछ भी नहीं किया था टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. वो बस अपना जो उनके मतलब की चीज़ें थी, द रॉ मटेरियल्स, द फिनिश्ड गुड्स, दे वर कंसंट्रेटेड ऑन दोज थिंग्स, नॉट इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. सो इंडियन गवर्नमेंट का गोल था इम्प्रूव द agriculture condition. And the next goal of the Indian government was to improve peasant condition. peasant मतलब जो farmers होते हैं उनकी condition में उनकी condition को improve करने का भी एक target रखा. And then distributive justice of income and land, because zamindars have so much land, and then किंग्स एंड ऑल द सिस्टम फॉर देयर. तो किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड होता था एंड हेंस इनकम ज़्यादा होती थी. एंड देयर वर अदर हु वर वर्किंग लाइक स्लेव, लैंडलेस लेबरर्स एंड पेजेंट्स. दे डिड नॉट हैव लैंड, और इवन इफ दे हैड, दे वर दिस लैंड होल्डिंग वाज वेरी स्मॉल. तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ऑफ इनकम एंड लैंड का एक भी टारगेट था इंडियन गवर्नमेंट का पोस्ट इंडिपेंडेंस. एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. Public health was also a target. Public health कैसे improve होगी? By providing nutrition to the masses. जब आप अच्छा खाएंगे तो obviously the health will be better, your productivity will be better, and the sickness will reduce. जो health issues, जो nutrition related, food related sickness है वो कम हो जाएंगी, diseases कम हो जाएंगी. So these 5 were the goals of the Indian government post independence for as far as agriculture was concerned. So what actions they took? तो actions क्या लिया? Various programs were designed, like intensive agricultural development program 1961. देखिए मैं ना ये notes है तो इसमें मैं इन चीज़ों को एकदम से डिटेल में लिख के नहीं बताऊंगी. ये आप अभी वीडियो पॉज करिए और गूगल करिए, या कोई बुक आप रेफ़र करते हैं तो रेफ़र करके आप इसको पढ़िए. अदरवाइज़ इसमें अगर एक नोट्स में सब कुछ लिख देंगे ना तो आपको रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम होगी. तो मैंने जस्ट पॉइंटर्स लिखे हैं, और ये आप जब 1-2 बार पढ़ लेंगे कि ये एक्चुअली ये प्रोग्राम व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, इसका पर्पस क्या था, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, वो आपके माइंड में रह जाएगा. फिर आपको बार बार उसको देखने की या लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So just go through this, pause the video, go through this, what is this program by yourself, do some self work, and then आपको you will never have to repeat it. So the first was intensive agricultural development program in 1961. This was for एग्रीकल्चर, जो उसको इंटेंसिवाइज करने के लिए प्रोग्राम था. एंड द नेक्स्ट वॉज इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? यू हैव टू टेल मी ऑन इन द कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, नोट्स आप ऐसे ही बनाना, पूरी कहानी नहीं लिखना, अदरवाइज यू विल मिस द पॉइंट ऑफ नोट्स मेकिंग. बुक ही छाप देंगे आप. एंड देन थर्ड वॉज ग्रीन रिवोल्यूशन. ग्रीन रिवोल्यूशन कब हुआ? ग्रीन रिवोल्यूशन, दिस पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड इन ड्यूरिंग 1960s. 1960s में लाया गया, when the even after all these things, when the productivity was not improving, then the green revolution was adopted. Who was the father of the green revolution? Let me know in the comment section. Abhi he recently just passed away, the gem of Indian agriculture, who gave India, who made India self-sustainable in the agriculture. He just passed away in 2023 in this month. Let me know the name of the person.
एंड देन ग्रीन रिवॉल्यूशन में फिर क्या था, देयर आर, मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए हैं देखिए उसको वेरियस कैटेगरीज में। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन को आप कहानी की तरह पढ़ लेंगे, बट जब आंसर लिखने जाएंगे तो यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी कि उसको स्ट्रक्चर कैसे करें, फ्रेम कैसे करें, आपको याद करने में भी दिक्कत होगी, उसको आंसर राइटिंग में, आंसर में प्रेजेंट करने में भी प्रॉब्लम होगी। और ये दोनों का डिटेल मैंने यहाँ इसलिए भी नहीं दिया है क्योंकि आपको स्पेसिफिक इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ना प्रीलिम्स में पूछेगा ना मेंस में पूछेगा, बट एक बार आपको पढ़ना है टू नो व्हाट इट वाज, हाउ इट वाज इम्प्लीमेंटेड। ऑलराइट, पढ़िएगा ज़रूर आप। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का आपको अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो भी आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन इंक्लूड करना ही करना है अलॉन्ग विद दीज थिंग्स। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज, जो मैंने नोट्स बनाए हैं देखिए, पर्पज़। स्टार्ट आप ऐसे करेंगे ना, लाया क्यों भाई, कोई चीज़ हम लाते हैं क्योंकि उसका कोई पर्पस होता है, मकसद होता है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। तो व्हाट वाज द पर्पस, देन मेजर्स। ठीक है, पर्पस तो पता चल गया, अब उसको करेंगे कैसे, मेजर्स। हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, नेसेसरी स्टेप्स भी ले लिया, उसका इफेक्ट क्या था, वॉज इट पॉजिटिव, वॉज इट नेगेटिव, वर वी सक्सेसफुल, इफेक्ट क्या था, एंड देन उसका आउटकम क्या आया, अल्टीमेट रिजल्ट व्हाट वाज इट, पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड देन कोई भी चीज़ होती है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो व्हाट वर डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या गोल्स हमारे ये थे, एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में एक्शन हमने ये लिए, एंड देन ग्रीन रिवॉल्यूशन वी आर एलैबोरेटिंग हियर बिकॉज ऑफ इम्पॉर्टेंस of this topic in the mains especially. So the purpose, we will see purpose, measures, effect of green revolution, outcome of the green revolution, and disadvantages of the green revolution if any there was. So let's see this in the next